we'll discuss ideal and non-ideal solution. So we'll discuss Roltas law. As per Roltas law, the vapor pressure of any volatile component in the solution directly varies with its mole fraction. Like this. This is the statement of Roltas law. That means here P1 is the vapor pressure, partial vapor pressure of component 1 in the solution. That means the solvent directly varies with the mole fraction. X1 is the mole fraction. So what is P1 naught? P1 naught is the mole. This is the vapor pressure of the pure solvent, pure component. So we have solutions. We categorize solutions on the basis of Roltas law. So we have two set of solutions. Number one is ideal solution. So we have solutions which obey Roltas law over the entire range of concentration. Such solutions are said to be ideal solutions. So in short, we can say that the solutions which obey Roltas law over an entire range of concentration are said to be ideal solutions. So ideal solutions have two more important properties. Number one, del H mixing is equal to 0. What that means? So when we mix the components to make a solution, no heat is evolved or absorbed. That means enthalpy of mixing, that means del H mixing is equal to 0. There is one more property, that is del V mixing is equal to 0. That means volume change. When we mix the component of a solution, so there is no volume change. What is the volume of the components before mixing? That remains same after mixing. So that means volume change del V mixing is equal to 0. So on molecular level, the interactions. There are three types of interactions. Number one, solvent interaction. Number two, that is solute interaction. Number third, that is solute solvent interaction. If we call this A interaction, this is BB interaction, this is AB interaction. That means this is unlike interaction. When you mix the components, so there is a new type of interaction between solute molecules and solvent molecules. If all these interactions are similar, attractive interactions are similar, the solution is said to be ideal. The solution is ideal. So example, अगर हम देंगे ideal solution का, so एक बात हमें याद रखनी है कि there is no perfect ideal solution, but there are some solutions which approaches ideal, which approaches ideality, which approaches nearly approaches ideal solution. That is, if I put an example, n-heptane plus n-hexane, normal hexane, normal heptane and normal hexane. Number two, I will put example, the second example, that is chloroethane plus bromoethane. So these two solutions, these two examples are this the example. These two examples are ideal solutions, nearly ideal solutions, not perfect ideal solutions, nearly ideal solutions. So we have one more solution now, that is non-ideal. What this non-ideal means? Non-ideal, these set of solutions which don't obey Roltas law obey नहीं करते ये. अब ये क्या करते हैं फिर? They show deviations दिखाते हैं from Roltas law.
अब ये डिविएशंस का क्या मतलब है? सो ये क्या यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर क्या हो सकती है, क्या हो सकता है यहां पर? यहां पर वेपर प्रेशर होगा हाई देन दैट प्रिडिक्टेड बाय रोल्ट्स लॉ। यानी जितना वेपर प्रेशर रोल्ट्स लॉ के मुताबिक आना चाहिए, अगर सोल्यूशन रोल्ट्स लॉ ओबे करती, फिर जितना जितना उसका वेपर प्रेशर आना चाहिए उससे इनका वेपर प्रेशर हाई होता है, या हो सकता है लो वेपर प्रेशर, लो देन दैट प्रिडिक्टेड बाय रोल्ट्स लॉ, या रोल्ट्स लॉ जितना प्रिडिक्ट करता है उससे इनका वेपर प्रेशर कम आ सकता है। अब जिनका हाई आता है, हाई वेपर प्रेशर देन दैट प्रिडिक्टेड बाय रोल्ट्स लॉ, दे आर सेड टू शो पॉजिटिव डिविएशंस, वो दिखाते हैं पॉजिटिव डिविएशंस। और जिनका लो आता है देन दैट प्रिडिक्टेड बाय रोल्ट्स लॉ, दे आर सेड टू शो नेगेटिव डिविएशंस, ये दिखाते हैं नेगेटिव डिविएशंस फ्रॉम रोल्ट्स लॉ। So the cause of these deviations can be explained on molecular level. For example, अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास तीन किस्म के इंटरेक्शंस होते हैं। नंबर 1 सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, नंबर 2 solute solute interaction, number 3 is solute solvent interaction। ये तीन किस्म के इंटरेक्शन होते हैं। दिस इज अनलाइक इंटरेक्शन, ये वाला, यानी आफ्टर मिक्सिंग दिस इंटरेक्शन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, दैट मींस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अगर ये सॉल्यूट एंड दिस सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ये अट्रैक्टिव इंटरेक्शन अगर ये होगा वीक एज कंपेयर्ड टू दीज टू इंटरेक्शंस इन दो से, यानी सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन से, ये यानी इनका फोर्स कमजोर होगा, आपस में इनका फोर्स जो है ना अट्रैक्टिव फोर्स वो कमजोर होगा एज कंपेयर्ड टू दीज टू। उससे क्या होगा? द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्यूट एंड सॉलिड मॉलिक्यूल्स इनटू द वेपर फेज विल इंक्रीज, यानी more and more molecules of solvent and solute will go into the vapor phase, thereby increasing the vapor pressure. So इस तरह vapor pressure वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। For example, I'll give an example. If we have ethanol plus we have acetone, CH3, C double bond CH3, this is acetone, C2H5OH, आपस में इनमें होता है, ये सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल है, यहां पर होता है इनके जो इंटरेक्शन होते हैं लाइक इंटरेक्शन, यानी इथेनॉल मॉलिक्यूल इथेनॉल मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरेक्शन होगी, एस्टोन मॉलिक्यूल और एस्टोन मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरेक्शन होगी, दैट विल बी स्ट्रॉन्गर देन द इंटरेक्शन बिटवीन इथेनॉल एंड एस्टोन। सो इनके जब हम इनको मिक्स करते हैं, इनके दरमियान जो इंटरेक्शन हो जाती है, इंटरेक्शन जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा इनके दरमियान, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा, इंटरेक्शन जो होगी, दैट विल बी वीक, वो कमजोर हो जाती है। सो उससे क्या होगा, इनका जो एस्केपिंग टेंडेंसी होगा इनटू द वेपर फेज, दैट विल बी मोर, देयरफॉर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वहां पर। सच सॉल्यूशंस विल शो पॉजिटिव डिविएशंस फ्रॉम रोल्ट्स लॉ। इसको हम ऐसे ग्राफिकली दिखा सकते हैं, ग्राफिकली हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, प्लॉट हम दिखा सकते हैं इसका लाइक दिस। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पर है, दिस इज XA इज इक्वल टू 1, XA हो गया एक्स सॉल्वेंट, XB हो गया सॉल्यूट, ये हो गया यहां पर 0 मोल फ्रैक्शन इसका, यहां पर XA हो गया सॉल्वेंट, यहां पर 0, XB यहां पर 1, यहां से हम देखते हैं ये मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन। अब यहां पर प्योर सॉल्वेंट है, यहां पर XA इज इक्वल टू 1, दैट मींस सॉल्वेंट इज प्योर, सो इसका वेपर होगा PA0। अब यहां पर जो XB यहां पर प्योर है, X इज इक्वल टू 0, इसका मतलब यहां पर होगा PB0। अब जब हम यहां पर XA1 यहां पर XA0, सो यहां जब यहां चलते हैं ना, इसका वेपर इसका मोल कम होता है, सो वेपर प्रेशर विल फॉल अकॉर्डिंगली। सो दिस इज
पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, इसका ग्राफ। अब ऐसे ही बी का भी, इसका भी कंपोनेंट, बी का भी कंपोनेंट सॉलिड का भी कम होगा, डिक्रीज होगा व्हेन मोल फ्रैक्शन डिक्रीजेस फ्रॉम एक्स बी इज इक्वल टू 1 एक्स बी इज इक्वल टू 0। सो इसका ग्राफ आएगा, इसका लिखेंगे रिलेशन, ये ग्राफ है इस रिलेशन, इसका पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। अब जब इनका वेपर प्रेशर ये है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा टोटल इनका पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये होगा सॉल्यूशन का। ये हो गया अगर ये रोल्स लॉ ओबे करते। अब ये दिखाते हैं पॉजिटिव ड्यूरेशन, इसका मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सो कंपोनेंट 1 का होगा वेपर प्रेशर ज्यादा, कंपोनेंट 2 का होगा वेपर प्रेशर ज्यादा सॉल्यूट का, देयरफॉर सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। सो दिस इज पॉजिटिव ड्यूरेशन, ये वाला है पॉजिटिव ड्यूरेशन फ्रॉम रोल्स लॉ। अब हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन है, दूसरा जो नेगेटिव ड्यूरेशन दिखाता है, नेगेटिव ड्यूरेशन। अब ये नेगेटिव ड्यूरेशन क्यों कैसे दिखाता है, क्यों दिखाता है? हमारे पास अभी मैंने बोला आपको, हमारे पास 3 किस्म की इंटरेक्शन है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, दूसरा है सॉल्यूट, सॉल्यूट, तीसरा है सॉल्यूट सॉल्वेंट। ये 3 किस्म के इंटरेक्शन होते हैं, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होते हैं ये। अब अगर ये वाला जो अनलाइक इंटरेक्शन है बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, दिस अनलाइक इंटरेक्शन अगर ये स्ट्रॉन्गर होगा, स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर्ड टू दीज टू इंटरेक्शंस, लाइक इंटरेक्शंस, यानी एज कंपेयर्ड टू सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, उससे क्या होगा, इनकी जो एस्केपिंग टेंडेंसी होगी, दैट मींस जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स की जो एस्केपिंग टेंडेंसी होगी इनटू द वेपर फेज, that will be more. That means more and more solute and solvent molecules will move into the vapor phase. Sorry, ये stronger है, so इनका जो एस्केपिंग टेंडेंसी होगा that will be less, वो कम होगा। That means little number of solute and solvent molecules will move into the vapor phase, thereby decreasing the vapor pressure of the solution. ऐसी सॉल्यूशन क्या करती है, ऐसी सॉल्यूशन दिखाती है फिर नेगेटिव ड्यूरेशन, यानी जो रोल्स लॉ प्रेडिक्ट करता है वेपर प्रेशर, उससे इसका वेपर प्रेशर कम आएगा, क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स की इसकी टेंडेंसी इनटू द वेपर फेज कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन। अब ये हम ग्राफिक इसका हम एग्जांपल देंगे, सो दैट इज फिनॉल। अगर हम लेंगे फिनॉल, दैट इज लाइक दिस, this is aniline plus aniline, ये aniline है। अब ये जब आप इनको आपस में मिक्स करते हैं, अगर हम इसका जो इंटरेक्शन होगा ना आपस में, जो फिनॉल और फिनॉल का, एनिलीन और एनिलीन का, जब इनको आपस में मिलाते हैं, जो फिनॉल और एनिलीन की इंटरेक्शन होती है, दैट इज स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन एज कंपेयर्ड टू द solvent to solvent, that means phenol phenol और aniline aniline interaction। therefore ऐसी solution जो होगी that will show negative deviations, ये वाली solution phenol plus aniline solution। अब इसको हम graphically दिखाएंगे, ये plot हम दिखाएंगे graphically like this। ये XA is equal to 1, XB is equal to 0। XA यहाँ पर सॉल्वेंट है, XB हो गया सॉल्यूट, XA यहाँ पर 0, XB is equal to 1, ये हो गया मोल फ्रैक्शन। इस ग्राफ जो हो गया वेपर प्रेशर यहाँ से, सो इसका XA यहाँ पर 1 है, इसका प्योर हो, ये प्योर कंपोनेंट इसका होगा PA नॉट। अब यहाँ पर XB is equal to 1, इसका होगा PB नॉट, ये कांस्टेंट होता है। अब जब इसका मोल फ्रैक्शन कम हो जाता है, ये डिक्रीज हो जाता है वेपर प्रेशर लाइक दिस। इसी तरह जब इसका कम होगा, ये कम डिक्रीज होगा, ये PA is equal to PA नॉट XA, ये होगा PB is equal to PB नॉट XB। अब सॉल्यूशन का ऐसा भी होगा, सॉल्यूशन का
You got total P total is equal to P A plus PB. ये हो गया एज पर रोल्टस लॉ. अब अगर नेगेटिव डिवीजन दिखाता है ऐसे हम इसका भी कम होगा कंपोनेंट 1 का लाइक दिस, इसका भी कम होगा लाइक दिस. देन प्रूव्ड बाय द रोल्टस लॉ. रोल्टस लॉ के मतलब यहाँ से आना चाहिए तो ये ऐसे आता है, इससे कम आता है, डेफिनेटली सॉल्यूशन का भी कम होगा. सो ये हो गया नेगेटिव डिवीजन. तो दिस इज नेगेटिव डिवीजन. Negative. So this is positive plot showing positive deviation. This is plot showing negative deviation. So this was about ideal and non-ideal solution. Thank you.